Good morning everyone, my name is Sukhmani Paulkar and I welcome you all to our YouTube channel. In today's video, we will discuss about various diseases of honeybees. So let's start our discussion with bacterial diseases of honeybees. American foul brood disease is the first bacterial disease we will discuss. अमेरिकन फोल ब्रूड डिजीज़ अक्सर एपिस मेलिफेरा की कॉलोनीज़ में देखा गया है. ये डिजीज़ कंटेगियस है एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया पेनेबैसिलस के कारण होता है. अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो ये अक्सर लार्वल या प्यूपल स्टेज पर अफेक्ट करता है, वेयर द बैक्टीरियल स्पोर्स एंटर द लार्वा और प्यूपा एंड जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ये लार्वा या प्यूपा की डेथ का कारण बन जाते हैं. इनिशियली जो लार्वा या प्यूपा होता है उसका कलर वाइट टू ऑफ वाइट होता है, बट द इन्फेक्टेड वन चेंज देयर कलर टू डार्क ब्राउन और ऑलमोस्ट ब्लैक. इसके अलावा जो हनी कॉम है इट शोज पॉटी ब्रूड पैटर्न अलॉन्ग विद परफोरेटेड संकन कैप्सल्स, और यही संकन कैप्सल्स विद टाइम दे गिव ग्रीजी लुक. Considering the control measures of American foul brood disease, the maintenance of hygiene in the comb is prerequisite. Along with that, we need to sanitize the tools and equipments before using them in the honeycomb. Apart from this, we can dust the comb with sulfur thiazole powder. These three measures are prominent in controlling American foul brood disease. The next disease we will be talking about is European foul brood disease. यूरोपियन फोल ब्रूड डिजीज़ इंडिया में इनिशियली एपिस मेलिफेरा की कॉलोनीज़ में अक्सर देखा जाता था, बट विद टाइम अब ये एपिस सिराना की कॉलोनीज़ को भी अफेक्ट करता है. यूरोपियन फोल ब्रूड डिजीज़ लार्वा की हर स्टेज पर अफेक्ट करता है. इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म मेलिसोकोकस प्लूटोनियस है. Further talking about symptoms of European foul brood disease. The diseased larva dies within 4 to 5 days of infection. Also, the characteristic feature of European foul brood disease is the larva turns into coiled stage, further causing its death and releasing of foul smell. Also, there is a change in color of larva from off-white to yellow and eventually to brown. यूरोपियन फोल ब्रूड डिजीज़ अक्सर कमज़ोर बी हाइव में देखा जाता है. अगर हम इनके मैनेजमेंट टेक्टिक्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर है शुक स्वॉर्म टेक्निक. नाउ व्हाट इज़ शुक स्वॉर्म टेक्निक? इन दिस टेक्निक द अफेक्टेड hive is transferred into a new beehive. In this technique, the frames are emptied into a new hive along with queen and worker bees. This is the most economic and popular technique. This also results in making colonies stronger and more productive. Second management technique would involve use of antibiotic oxytetracycline. Apart from this, the basic maintenance of hygiene in comb and sanitizing tools and equipments before use is prerequisite. The next important topic of discussion is stretch test. Stretch test एक आसान तरीका है ये कंफर्म करने का that our hives are affected with either American foul brood disease or European foul brood disease. In this test, we need to take a small stick or toothpick and gently insert into the identifiable suitable capsules showing possible symptoms. Then after inserting it, we need to gently and slowly withdraw it. If there is disease, then the dead larva will adhere to the tip of the stick. If the stretching brings semi-fluid thread up to 2.5 cm before breaking and snapping back, it confirms the presence of European foul brood disease. But if the semi-fluid thread stretches up to 4 or 5 cm before breaking, then it confirms presence of American foul brood disease. Hello everyone, myself Muzammil Khan.
I'm a student of experiential learning beekeeping at Scotch Jammu, and I'll convey you today about the fungal diseases we have in honeybees. So the fungal diseases of honeybee. First, we have the chalk brood disease. Now, it's caused by this disease is caused by the fungus Ascosphaera apis, which affects the honeybee brood. Now, symptoms. Initially, the dead larvae swell to the size of the cell. सबसे पहले जो लावे डेड हैं वो स्वेल हो जाएंगे सेल के साइज जितना, और उसके बाद दे आर कवर्ड विद वाइटिश माइसीलिया, फंगस के वाइटिश माइसीलिया से कवर हो जाएंगे. लेटर ऑन द डेड लावे दे ममीफाई, दे हार्डन, श्रिंक एंड अपीयर चॉक लाइक, एंड लेटर स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में दे टर्न ग्रेइश इन कलर. सो ये डिजीज़ कॉज होती है फंगस एस्कोस्फेरा एपिस से, एंड इसके इनिशियल सिम्टम्स हैं कि जो लावे हैं वो स्वेल हो जाएंगे साइज सेल साइज जितना, एंड लेटर ऑन वाइटिश मसीला ऑफ द फंगस से कवर हो जाएंगे. और उसके बाद वो जो डेड लावे हैं ममीफाई, हार्डन, श्रिंक एंड अपीयर चॉक लाइक, एंड लास्ट लेटर स्टेजेस में वो ग्रेइश कलर के हो जाएंगे. दे विल टर्न ग्रेइश इन कलर. नाउ द कंट्रोल. So high presence of mummified larvae will indicate the worker bees are not cleaning the hive appropriately. ठीक है, जितनी ज़्यादा mummified larvae होंगे उससे हमें ये indication मिलेगा that the worker bees are not cleaning the hive. Now the beekeepers should remove the dried out larvae, clean affected areas and requeen to develop a stronger and more resistant population. उसके बाद second हमारे पास है that to remove the mummies क्विकली एज फंगस डेवलप कंटिन्यूसली. जितनी जल्दी मम्मीज हो सके, ममीफाइड लावे हो सके, उतनी जल्दी उनको रिमूव करना है. एंड लास्टली वी शुड कीप द हाइव्स वार्म एंड ड्राई. नाउ नेक्स्ट वी हैव नोजीमा डिजीज. इट्स कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरेडियम नोजीमा एपिस और नोजीमा सेरेने. नाउ दिस इज जनरली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव डिजीज एडल्ट बीज की, विच अफेक्ट्स ऑल द वर्कर्स, क्वींस एंड ड्रोन्स इन द सेम वे अलाइक. नाउ द सिम्टम्स ऑफ नोजीमा डिजीज. So जो affected worker bees हैं they are unable to fly, and they may crawl about at the hive entrance, or they'll just stand trembling on the top of the frames, resulting into heavy mortality. So जो affected bees हैं वो उड़ नहीं पाएंगी, and they'll crawl at the entrance and they'll just tremble on the frames, on the top of the frame, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डेथ हो जाएंगी. So concluding that the Nosema disease is caused by Serene, Nosema serene is the most destructive disease affecting the workers, queens and same, and symptoms are that the bees won't be able to fly and they'll just crawl and stand trembling. Now it's control. So we should keep colonies as strong as possible and remove all the possible causes. जितने भी stress हैं causes के उन सबको remove कर देना चाहिए, and colonies को जितना हो सके उतना strong रखना चाहिए. Second is give heat treatment, passing hot diet combos 49 डिग्री सेल्सियस पे at least for 24 hours. एंड लास्टली हमें डिकंटामिनेट करना है इक्विपमेंट्स को जो सारे के सारे हम यूज़ करते हैं बी हाइव मेंटेनेंस में. विच कंक्लूड्स दिस टॉपिक. I am Sukanya Bharti, student of experiential learning beekeeping from Scotch Jammu. So now I'm going to tell you something about insects that affect the honeybees. So let's start. Greater wax moth, Galeria melonella. ये मेजर पेस्ट एपिस सेराना का है. ये हनी बी कॉलोनीज और बी प्रोडक्ट दोनों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है. ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एशियाज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है. वैक्स मॉथ एंटर करता है हाइव में एंड डायरेक्टली अपने जो एग्स हैं उनको डिपॉजिट कर देता है कूम्स में. अब जब न्यूली हैच जो इनके लार्वाज होते हैं ये हनीज और पोलन पे फीड करते हैं, एंड देन दे बरो इनटू द पोलन स्टोरेज सेल. एंड जैसे जैसे ये एडवांस करते जाते हैं कूम में, ये अपने पीछे एक मास वेब और डेब्रीज का ये मास अपने पीछे छोड़ के चले जाते हैं. एंड दे ऑल्सो अटैक ऑन बी ब्रूड, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिटीरियोरेशन होती है. देन द नेक्स्ट इज लेसर वैक्स मॉथ, एकोरिया ग्रेसिला. ये वीक हनी बी कॉलोनीज़ पे बेसिकली अटैक करते हैं, एंड इनके जो लार्वाज होते हैं ये प्रेफर करते हैं कि जो डार्क कूम्स होंगे ये उन पे फीड करेंगे उन्हीं के पोलन और ब्रूड सेल्स के साथ. एंड ऑल्सो दे फाउंड ऑन द बॉटम रूट अमंग द वैक्स डेब्रीज. इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एपेरी प्रोजेक्ट्स में डैमेज होता है. अनरिफाइंड बी वैक्स हमें मिलता है. हनी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाती है. यहाँ पर लाइफ साइकिल भी दिखाई हुई है.
ग्रेटर वैक्स मॉथ की एग से लार्वा, लार्वा से कुकून, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट। एंड लाइफ साइकिल ऑफ लेसर वैक्स मॉथ की भी है, एग, लार्वा, एडल्ट एंड एडल्ट ऑन कूम। यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिख जाएगा कि लेसर वैक्स मॉथ है, उनके डैमेजेस किस टाइप के हैं। नाउ वी मस्ट नो अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ वैक्स मॉथ। सो वीक कॉलोनीज़ के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, उनकी जो एंट्रेंस है उनको रिड्यूस कर सकते हो, एंड जो कूम्स हैं उनको यूनाइट कर सकते हो अदर कॉलोनीज़ के साथ। आप जो बॉटम है ब्रूड का उसको साफ कर सकते हो 4 नाइट इंटरवल्स में, और जो डैमेज एंड इन्फेस्टेड कूम्स हैं उनको रिमूव कर सकते हो, एंड अदर्स को एक्सपोजर दे सकते हो 30 मिनट्स एटलीस्ट सन के अंडर, सो दैट कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो किल जाएंगे। We can also fumigate the empty combs with sulfur at the rate 230 grams per meter cube. उसके बाद हम बॉक्स को सील कर सकते हैं। The next is carpenter ants. They are highly social insects और ये हाइव पे बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। अब इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले एपियरी को क्लीन रखें, जहाँ पर स्टैंड रखा हुआ है वो प्लेस क्लीन होनी चाहिए, एंड स्टैंड पे हम लोग ग्रीसिंग कर सकते हैं सो दैट कि जो आंट्स हैं वो क्लाइंब ना कर पाए हाइव के ऊपर। ये बेसिक चीज़ें हैं जिससे हम इन सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन सबको मैनेज कर सकते हैं। Everyone, myself Fatima Nisa from SCOS Jammu. Now we will discuss about the viral disease of honeybee. थाईसेक ब्रूड इन एपिस सिराना इंडिका, जो हमारी एशियन बी होती है एपिस सिराना, जो कि हमारे ज़्यादातर साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय थाईसेक ब्रूड वायरस। थाईसेक ब्रूड वायरस इज़ कॉज्ड बाय मोराटर एडेट्यूलस, जो कि स्पेशली स्प्रिंग सीजन में कॉज करती है। क्या क्या सिम्टम्स होती है थाईसेक ब्रूड वायरस? कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे हाइव में थाईसेक ब्रूड वायरस हुआ है? सबसे पहले सिम्टम जो है, हमारे ब्रूड की अपीयरेंस जो है वो स्पॉटी हो जाती है, और एक सिम्टम जो होती है, हमारे ब्रूड सेल्स में जो डेड लार्वा होता है वो ड्राई अप हो जाती है। एक और सिम्टम्स है, हमारी जो ब्रूड होती है वो डाई हो जाती है प्री प्यूपल स्टेज पे ही। कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे हम हमारे हाइव्स को बचाएंगे थाईसेक ब्रूड वायरस होने से? सबसे पहले मैनेजमेंट है, हम हमारे हाइव्स को जो है फ्यूमिगेट करेंगे फॉर्मिक एसिड के साथ एट द रेट 5 ml पर हाइव। दूसरे हम मैनेज करेंगे कैसे, हम विगोरियस और स्ट्रॉन्ग कॉलोनीज़ को मेंटेन करके हम मैनेज कर सकते हैं। तीसरी बात, हम हमारे जो बी कीपिंग इक्विपमेंट्स जो है उनको यूज़ करने से पहले ही हम स्टरलाइज करेंगे विद पोटेशियम परमैंगनेट एट द रेट 50 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। सो गाइस, ये कुछ मैनेजमेंट थी जिससे हम हमारी हाइव्स को थाईसेक ब्रूड वायरस होने से बचा सकते हैं। So guys, thank you for watching our video presented by the students of SCOS Jammu.